Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah. Good morning. So in the previous session, we have completed the the difference between the value types and reference types, and then we have seen some arrays also, how to use the single, multi-dimensional, and jagged arrays. So this is the code for that. Then after that, this is an example of the indexers. Okay, so this is the example of the indexers. So indices and ranges are actually used from C# 8.0 version. So your language should be of that particular version. Then only you can use the features of indices and ranges. So all these things we have seen in the previous practical session. Okay, and then let's move on to the next session. Yesterday, Anirudh sir might have completed the topics from this session 7, which is mostly comprising of the generics in the C#. Okay, so generics in the C# is a very important topic, and generics was included in version 2.0, even though. So .NET Framework 2.4 from 2.0 it was there. It is solving some kind of issues generally faced by the programmers in industry as such. Okay, so let us understand the generics implementation and what are the methods and constraints also we will see. Okay, so mostly there are two kinds of collections. First one is this non-generic collection. So whenever you are going to create a some list like a list of some integers or list of some strings or list of some data, so generally they are unusual. Usually it was called by using the non-generic classes, but we from C# 2.0, .NET Framework 2.0, we can call the generic collections also. Okay, so these things we are going to discuss, as well as we will see the practical implementations in our today's session. Then also we can see the tuples also. So tuples also very easy to understand, and iterating the collections. So as usual, if you got any collection, so that can be a generic collection or that can be a non-generic collection. So simply we can get the iteration on it. So by using the for loop or by using the for each. So for loop is basically on the indexed based iteration. So for each is actually iterated through the item collection inside of that particular collection element. ओके सो दो तरीके हैं अवेलेबल. आप या तो फॉर लूप से भी आप इटरेशन कर सकते हैं या फॉर ईच से भी कर सकते हैं. फॉर ईच इज मोर appropriate because it will not give you the index out of bound arrays, because you are not going to call I greater than the maximum length of the that particular array or collection. So that's why you are going to have a limited the upper ceiling on your collection. So it is a much better to use, and also the object manipulation is also possible. So there are some advantages and disadvantages to each of the feature. Okay, so let us start with this. So generic concept. So theoretically, पहले हम समझ लेते हैं theoretically generic class का implementation क्यों करना चाहिए, generic type का implementation क्यों करना चाहिए, and then we will see the practical code. एक बार theory properly समझ में आ गया तो practical understand करना it's very easy. Okay, so that's why I will give the basic idea of any topic beforehand in a normal real world scenarios. Then only we will go to the demonstration. So कोई बता सकते हैं generics का use क्यों करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए? जैसे कल आपका थियरी क्लास हो चुका है तो आपको आइडिया तो आ गया होगा कि व्हाट आर द जेनरिक्स. सो कैन एनीबॉडी गिव द प्रॉपर आंसर? सो जेनरिक्स, व्हाई जेनरिक्स आर important and where the need of generics are
generally in .NET framework. Yes, sir. Provide the flexibility of data type. Right. So actually generics are nothing but the generic. So generic means it do not have any kind of proper type. So it is a generic nature. It is having some generic type. Okay, so what is mean by generic? It's common. So like that you can understand. So generics मतलब हम कोई data type को attach नहीं कर रहे हैं. हम कोई predefined compiler को हम ये नहीं बता रहे कि this should be of the student data type or this should be of some integer data type or this can be of string data type. हम ऐसा beforehand अगर और नहीं बताना चाहते हैं to the compiler, then in those cases we can depend on this generics. So what is the advantage? Advantage is very simple. Suppose example के लिए मैं एक program run करके ही मैं आपको बता दूंगा. Okay, so this is my class in which I am going to. Okay, so now everything is clear. Suppose अभी ये तो अभी इंडेक्सर नहीं है. So this is about generics example. And namespace you can keep any name, your company name or your project name, anything. And this is this main entry point. Okay, and then what I want to do is here I just implement with some array list. Okay, array list तो by default ऐसा नहीं आता, उसके लिए system dot collections लेना पड़ता है using system dot collections. अब जितने भी collections के जो क्लासेस है, कलेक्शंस इंप्लीमेंट करने के जो क्लासेस है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा. अभी देख सकते हैं आप array list जैसे इट इज कमिंग हियर. ओके, so you can mouse over and can see what is the namespace that it is given with. So array list का जो क्लास है ये क्लास है, array list is a class. ये क्लास को इन्होंने इंप्लीमेंट किया सिस्टम डॉट कलेक्शंस के अंदर. आप यूज करते करते आपको समझ में आ जाएगा. सो सिस्टम डॉट कलेक्शंस के अंदर जितने भी कलेक्शन रिलेटेड क्लासेस है वो सब उन्होंने ये नेम स्पेस के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट दिस नेम स्पेस. जावा में तो आपको पैकेज बोलेंगे, ठीक है. ये नेम स्पेस सी शार्प का .NET फ्रेमवर्क का टर्म है. सो नेम स्पेस को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. ओके, एंड देन यू कैन कॉल द क्लास डायरेक्टली. सो दिस इज माय क्लास and suppose I will take here a new array list like this, okay. And what I want to do is I just want to compute the first 10 factorials of the given numbers. Okay, so I will initialize with factorial as 1, and then as usual for int I is equal to 1 2, क्योंकि integer है तो आपको 0 नहीं आएगा. ओके, सो बस ले सकते हैं, ठीक है. सो I is equal to 1, then I less than or equal to 10, then I plus plus. Here factorial का जो फॉर्मूला है हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे. फैक्टोरियल is equal to factorial into the I. Okay, so factorial is equal to factorial into I. ये हम इंप्लीमेंट किए. इंप्लीमेंट करने के बाद factorial dot automatically आ रहा है factorial dot add. as this is an array list, so array list का by default एक आपको मेथड आएगा. देखो आप यहाँ पर returns adds an object to the end of the array list. Okay, so add means this is a method given for the array list. So as this factorial is an array list, so ये array list को जो भी add करना है तो we have to call this method and provide the value. So the value is we are calculating in the previous statement. तो ये हम attach किया है यहाँ पे. Okay, so this method is calculating the factorial. Now we want to print the factorials. Okay, so अभी इसके लिए क्या करूँगा मैं, print the factorials.
then again print करना है तो I have to loop again from this factorial. Okay, so उसके लिए मैं क्या करूँगा, int I is equal to 1 to less than equal to 10, then यहाँ पे I have to take each individual factorial of I index. Okay, so I have to get like this. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी जैसे फैक्टोरियल इज एन एरे लिस्ट, बट व्हाट आर द एलिमेंट्स इनसाइड दिस एरे लिस्ट, द इनसाइड द एरे लिस्ट वी आर स्टोरिंग नथिंग बट द इंटीजर्स. ये देखो इंटीजर है, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंटीजर ही लेना है, बुलियन भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं. हर एक डेटा टाइप जो पॉसिबल है आप एरे लिस्ट के अंदर सेव कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज. ओके, बिकॉज दिस इज ए नॉन जेनरिक कलेक्शन. सो ये जो हैश लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सब है ना, ये नॉन जेनरिक है. नॉन जेनरिक मीन्स इसमें आप आपको मैनिपुलेट करना है तो आपको टाइप सेफ के थ्रू कॉल करना पड़ेगा. आई विल शो दैट टाइप सेफ्टी. ओके, अभी देखो यहाँ पे एरर दे रहे हैं because we definitely know that the values which are available inside this factorial are of the integer data type. तो जैसे ही ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो जैसे मैं इसको इटरेट करके कॉल कर रहा हूँ, ये करने नहीं देगा बिकॉज दिस इज एन एरे लिस्ट. नाउ यू हैव टू टाइप कास्ट. इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग. ओके, सो जब तक आप इंटीजर डेटा टाइप को ये जो वैल्यू टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे तो ये इसमें सेव नहीं करने देगा. सो दिस इज कॉल्ड एज आई डोंट नो वेदर सर आपको ये बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग का फीचर बताया है. ये काफी इंपॉर्टेंट है डॉटनेट फ्रेमवर्क में, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. ये थियोरेटिकल सेशन में आते हैं. ओके, सो बॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग है क्या है, आप खुद भी रेफर करके चेक कर सकते हैं. सो व्हेनेवर वी आर converting one reference type to the value type, value type to the reference type, इसको हम करते हैं बॉक्सिंग. एंड सिमिलरली एक और फीचर है दैट इज कॉल्ड एज अनबॉक्सिंग. सो जब भी हम वापस इसका जो रेफरेंस टाइप से हटा के वैल्यू टाइप हम ले रहे हैं तो अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा. सो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग आर द like transparent features which are continuously happening in the .NET CLR. So CLR ये पूरा लुकआउट करता है. So जब भी चाहिए तो बॉक्सिंग करेगा, नहीं चाहे आपको लाइन आपको डेटा प्रॉपरली रीड करके देना है तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कंटिन्यूअसली ये करके लेगा. बट यू हैव टू प्रोवाइड द स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली. सो जैसे हम ये करेंगे तो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग फीचर्स ऑटोमेटिकली कॉल होगा. ठीक है, so I will not go into the details of the boxing and unboxing, which is very essential part of the .NET framework CLR. Okay, so जब तक आप ऐसा मैन्युअली टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं जैसे हमने चेक किया यहाँ पे, वो एरर देगा. So that's why whatever is the element you have to specifically manually you have to typecast in this way. अगर आप string ले रहे हो तो यहाँ पे string देना पड़ेगा. Okay, so then only it is going to take out the data accordingly. अब तो ये यहाँ पे एरर आएगा. एरर तो शायद नहीं आएगा क्योंकि ये इंटीजर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग को जनरली इंटीजर इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो इट डिपेंड्स ऑन द रन टाइम. ओके, सो रन टाइम में उसको जितना टाइप से सेफ्टी के लिए चेक करना है वो करेगा एंड अकॉर्डिंगली इट कैन थ्रो यू द टाइप सेफ्टी एक्सेप्शन. सो एज ऑफ नाउ आवर वैल्यूज आर इंटीजर वैल्यूज, क्योंकि आपने को पहले से बताया कि हम इटरेट किसको कर रहे हैं, 1 to 10 को कर रहे हैं. So the programmer beforehand is knowing that these values are integer data type. So इसीलिए उसको integer में type casting करके use कर सकते हैं. Now what is the remaining? The remaining thing is console dot write line and provide the value. So provide the value. ठीक है, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ. रन करने के बाद oh it did not stop. Index was out of range. Okay. हाँ, यहाँ मैं एक्चुअली आई को कॉल होना चाहिए.
So let us check with this. Okay. I का value now it is coming as 9 and index is out of when we have non-negative index. हमने जितने ऐड किए उतने ही तो हम रिट्रीव कर रहे हैं बेसिकली, बट it is breaking here. Have to change here. Suppose मैं यहाँ पे factorial of I इसको डिबग करके चेक करते हैं. Okay, so there is a feature which is debugging, which I have explained in the very first session. So उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करने के लिए देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे जा रहा है. ठीक है, अब ये तो एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं, ये मुझे भी अभी देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे एरर आ रहा है. ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, एरर को भी फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इटरेट किया है. इटरेट करने के बाद फैक्टोरियल के अंदर यू कैन सी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, एरे लिस्ट बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. सो 0 का वैल्यू इसने 1 ले लिया, 1 का वैल्यू 2 ले लिया, 2 का वैल्यू 6 ले लिया क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहा है. एंड अप टिल 8, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या दिया है, लेस देन 10 लिया है. सो दैट्स व्हाई ये क्या कर रहे हैं, 9 एलिमेंट्स तक वो स्टोर किया है. एंड यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, अभी तो नहीं, अभी एरर नहीं आएगा. इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे एरर आ सकता है. अभी देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू 9 हो चुका है, बट यहाँ पे आई का वैल्यू 9 वाले एग्जिस्टिंग नहीं है. ओके, सो ये स्टेटमेंट में जब मैं अगर स्टेप इनटू करता हूँ, सो इट विल थ्रो एन एरर. ठीक है, सो ये है देखने का तरीका, डिबगिंग करने का तरीका. अब पिन पॉइंटेडली अंदर जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली इसका एरर आ रहा है. सो नाउ द करेक्शंस यू कैन टेक. अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली 9 कर दूंगा तो चल जाएगा, कोड तो चल जाएगा. ठीक है, एंड वी कैन सी द आंसर्स आल्सो. ओहो, डिबगिंग निकालना पड़ेगा मुझे. राइट क्लिक, डिलीट द ब्रेक पॉइंट, कंटिन्यू, एंड नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज. ओके, सो अभी वैल्यूज तक की हम बात करेंगे. ठीक है, देखो ये 1 का 2 का 3 का 4 का ऐसा आपको मल्टीपल वैल्यूज का आपको प्रिंट करके दे रहा है फैक्टोरियल. नाउ एक्चुअल पॉइंट में जाते हैं हम. ठीक है, एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे क्या है, every call it is actually calling this manual typecasting. So ये implicit नहीं है, ये explicit typecasting है. ये जो explicit typecasting में क्या हो रहा है कि हर बार ये एरे लिस्ट के अंदर से जो ऑब्जेक्ट, एरे लिस्ट के अंदर एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, अभी तो फिलहाल के लिए इसके अंदर जो भी सेव करेंगे, आई 1 हो सकता है, आई एबीसीडी हो सकता है, आई बुलियन हो सकता है, और आई कैन बी एनी अदर डेटा टाइप. बट इसमें क्या हो रहा है कि रन टाइम पे ये डिसाइड नहीं करती, मैन्युअली हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग करके दे रहे हैं. सो इट इज क्रिएटिंग दिस बॉक्सिंग, एंड एक्चुअली ये अनबॉक्सिंग है. ओके, सो अनबॉक्स करके हम चेक कर रहे हैं. अब अनबॉक्स करके चेक कर रहे थे, इट विल गिव यू द पूर परफॉर्मेंस. सो हियर at this line, we get poor performance due to boxing and unboxing, because the object type needs to be converted to the value type. तो ये बार बार हो रहा है ना.
यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंटीजर इज अ वैल्यू टाइप, है ना। सो जब जब ये कन्वर्शन होता है ना, सो परफॉर्मेंस का पेनल्टी होता है। सो कंटिन्यूअसली जब आपको बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग कंटिन्यूअसली आपके प्रोग्राम के मेमोरी के अंदर चलता रहता है, सो इट विल गिव यू अ डेफिनेट परफॉर्मेंस पेनल्टी। सो दैट इज द वन ऑफ द मेजर रीजन टू नॉट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कोड। बहुत ज्यादा मतलब एक बार के लिए ठीक है। What if I am going to give you the condition like some 9,000, sorry 9,000। So जितने भी 9,000 या 90,000 ऑब्जेक्ट्स के लिए बार बार ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करेगा। ओके यहाँ पे बॉक्सिंग होता है एक्चुअली, ये आई का वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना। नाउ इट इज गेटिंग बॉक्सिंग एंड हियर इट इज गेटिंग अनबॉक्स्ड। ओके सो ये जितने भी बार जैसे 90,000 टाइम्स के लिए कर रहा हूँ ना, ये मेमोरी के अंदर रेफरेंस टाइप को वैल्यू टेक करना, वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप करना, अगेन सेकंड टाइम के लिए वैल्यू टाइप को रेफरेंस करना, रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप करना, थर्ड टाइम के लिए रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप करना, वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप करना। सो इट इज गिविंग यू द most performance penalty on your application. So that's why it is generally not advisable to go for this kind of programming. छोटे मोटे जैसे यहाँ पे दो है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ही बार करना है ना, तो दो बार चल जाता है मेरे एप्लीकेशन के लिए। बट इफ यू डू नॉट नो रन टाइम, आपको पता ही नहीं है कि यूजर का फैक्टोरियल का जो इनपुट है कितना होने वाला है। वो 9 लाख भी दे सकता है, 90 लाख भी दे सकता है। एंड इन दोज काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, ये वैल्यू के ऊपर, ये यूजर इनपुट वैल्यू दे सकता है, यूजर से कैप्चर कर रहे हैं, यूजर को यूजर ने जो कैप्चर किया है उसको आप सेंड कर रहे हो प्रोग्राम को, एंड अकॉर्डिंगली इतने सारे फैक्टोरियल्स का वो बना के दे रहे हैं, है ना। तो जब जब आपको ऐसा प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का फीचर आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एंड एज इट विल गिव यू द परफॉर्मेंस पेनल्टी, सो उसको क्या करेंगे हम, इसको आपको कम करना पड़ेगा वैल्यूज। अदरवाइज इफ यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट, आप क्या कर सकते हैं, ये जो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग फीचर को है ना, आप एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इन ए डिफरेंट वे, है ना। तो उसके लिए अपना जेनरिक्स का काम आ जाता है। एंड ये एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने अभी एक ही एस्पेक्ट के ऊपर मैंने अभी फोकस किया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का, क्योंकि ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये इंटीजर है, इंटीजर होने के बाद भी हम डायरेक्टली फैक्टोरियल एज एन एरे लिस्ट, क्योंकि कोई ये टाइप नहीं है, हमने यहाँ पे कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। सो जनरली आप जो भी पुश करेंगे इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट ही बन जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट बन गया है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, बिकम्स एन ऑब्जेक्ट हियर, ओके। एंड नाउ it is getting retrieving those values, and now this is unboxing। ये मैं बॉक्सिंग हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ इट इज कॉलिंग दिस, यहाँ नहीं है एक्चुअली, ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बॉक्सिंग का फीचर चल रहा है। सो दिस इज अनबॉक्सिंग, ओके। एंड ये जैसे ही अनबॉक्सिंग होता है तो आपको पेनल्टी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। 10 इंटीजर वैल्यूज को हम एरे लिस्ट में स्टोर किया है और इसको रिट्रीव करके प्रिंट कर रहे हैं। ओनली दैट पार्ट वी हैव डन। किसी को डाउट इसमें? No, sir, got it. Got it? Okay. So we will see with another limitation with this kind of feature. अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम भी है इसमें मुझे, दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है, जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर का एक ले लिया, चलो ये चल गया। अब मुझे ये एक मेथड में है सपोज, वो बना के ही दिखाना पड़ेगा आपको, तो नहीं प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ, सो दैट आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली जेनरिक्स का बना लेता हूँ, सो दैट आपको प्रॉपर्ली ये भी समझ में आ जाएगा। Node list of type T. Okay, so this is my class.
ये देखो ये जो T है ना, T मींस टाइप, T मींस टाइप, सो दिस नाउ बिकमिंग जेनरिक क्लास। अब डेटा मेंबर के सामने में करेंगे तो जेनरिक डेटा टाइप हो जाएगा, मेथड के सामने, मेथड के फंक्शन के आर्गुमेंट्स के अंदर करोगे तो जेनरिक पैरामीटर्स आप पास करोगे, मेथड के नेम के सामने में करोगे तो जेनरिक मेथड्स बन जाएंगे। ओके, सो दिस इज पर्टिकुलर यूसेज ऑफ द जेनरिक्स। तो अभी मैं पूरा एग्जांपल के साथ ही आपको समझा दूंगा। सो प्राइवेट, मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ विच इज ऑफ द जेनरिक टाइप। ओके, एंड उसका ये डेटा टाइप सब देखो, ये सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग अगर ऐसा कर दूंगा, देखो ये प्राइवेट है, ये वेरिएबल है, एंड दिस इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कलेक्शन ले रहा हूँ। ये प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, ये एरे बनेगा, है ना। अब ये एरे कौन सा बनेगा, स्ट्रिंग का बनेगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इंटीजर का एरे बनेगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बुलियन का एरे बनेगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ, मतलब आप कोई भी टाइप का एरे बना सकते हो। But now I want to take a generic collection which is called as list. Okay. अब ये जो टाइप है, इसका जो टाइप मैं बिफोर हैंड में समझाऊंगा नहीं। ओके, रन टाइम पे मैं समझाऊंगा कंपाइलर को, डॉटनेट के जो CLR को, ये रन टाइम पे पास करना चाहते हो। यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ओके, विच इज ऑल्सो वैलिड। यहाँ पे आप इंटीजर दे सकते हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट दे सकते हैं, यहाँ पे आप यू बाइट दे सकते हैं, है ना। तो करने का बहुत सारे तरीके हैं, but right now, as I don't want to attach with any data type to the compiler before compilation, I want to keep it as a generic nature. I want to keep it as a common data type. So that's why this is the format to apply in this case. So मैं ये T लूंगा, T के बदले में आप कुछ भी ले सकते हैं, T भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, but generally क्या होता है कि .NET में T is more recognizable for the data type. So list of type is given with this variable. Okay, then what I'm going to do is I'm going to call this constructor. Okay, so new list tab. Okay, so tab पे ऑटोमेटिकली कंप्लीशन दे रहा है। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रक्टर है, जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सो न्यू लिस्ट डेटा टाइप में क्रिएट कर रहा हूँ, एंड उसको मैं अटैच कर रहा हूँ नोट्स में। सो इसमें मैं अटैच कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स इसमें जो भी पास करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली इसमें असाइन होगा। एंड सेकेंडली आई विल गिव public void add node. So T is my data type. I don't know as of now what is that particular data type. And then nodes dot add. देखो कोडिंग ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है, because it can guess what you want to get from this method. Okay. So जैसे मैंने nodes dot करूंगा, ये ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है, just add to tab and it is getting active. Then one more method I will create, public void delete node, which is again not to remove. ये नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, because this is an argument, this is a parameter. Okay, so आप कैसे भी इसको ले सकते हैं। And here what I will do is nodes, as this is a list. Okay, so ये जो add और देखो डॉट करने के बाद remove, add it, remove it, insert, for each, इतने सारे by default methods कॉल कर सकते हैं आप, because this is a कलेक्शन। ये जो कलेक्शन है तो उसका ऑटोमेटिकली मेथड्स भी आ जाएंगे। उसके अंदर से मैं क्या करूंगा, एक रिमूव का मेथड मैं कॉल करूंगा। एंड कौन सा रिमूव करना है, ये देखो ग्रे में आपको सजेशन भी दे रहे हैं, नोट टू रिमूव, बिकॉज दिस इज द पास्ड पैरामीटर। ओके, सो मैं टैप टैप कर लिया, कंप्लीट कर लिया कोड को। देन एक और मेथड लूंगा, उसका नाम है पब्लिक वॉइड प्रोसेस ऑल नोड्स। ओके, सो ये मैं यहाँ पे फॉर ईच, ये देखो फॉर ईच टैप, डबल टैप करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, एग्जिस्टिंग नोड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को, दैट मींस दिस इज द नोड्स, इसके अंदर आपका जो भी एक पर्टिकुलर नोड होगा वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सपोज कंसोल डॉट राइट लाइन node dot to string, that's all. Okay,
सो एक मेथड लिया हमने ऐड करने के लिए, यहाँ से नोट्स के अंदर एलिमेंट्स ऐड करेंगे। एक मेथड लिया रिमूव करने के लिए, यहाँ से जो भी नोड हमने पास किया वो डिलीट हो जाएगा। और एक नोड लिया है सिंपली प्रिंट करने के लिए, इटरेट करेगा फॉर ईच पे, जितने भी नोट्स का कलेक्शन है 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, यू डोंट हैव टू मेंटेन द इंडेक्स, ऑटोमेटिकली जितने भी एलिमेंट्स है उसका कलेक्शन आपको इटरेट करके वो पर्टिकुलर नोड को एक्सपोज करेगा, एंड वो पर्टिकुलर नोड का जो वैल्यू हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया पहला अपना लॉजिक बिल्डिंग। अब ये लॉजिक बिल्डिंग क्या है कि हमने जेनरिक्स के थ्रू कंप्लीट किया। देन वी विल गो टू द मेन मेथड। मेन मेथड में क्या करेंगे, नोड लिस्ट ऑफ टाइप, ये देखो ऑटोमेटिकली कोड कंप्लीट हो गया। बट एज दिस इज ए प्रोग्राम, ये प्रोग्राम में क्या होता है कि स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ता है कि आपको किस डेटा के ऊपर प्रोसेस करना है। कभी आप इंटीजर पुश करेंगे, कभी आप स्ट्रिंग पुश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं लेंगे, ये जेनरिक है करके हमने यहाँ पर डिफाइन करने के लिए टेम्पलेट है करके हमने ऐसा ले लिया। बट ये टेम्पलेट अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंटीजर ले लूंगा, नोड इंट नोट्स करके मैं दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि डिफाइन करने के लिए ये इंटीजर का नोट्स है करके। then again I have to define as integer here. Then what I will do is int nodes को add करूंगा with some values and इसको मैं copy paste करूंगा 2 3 4 5 6 something like that. So मैं यहाँ पे दे दूंगा 4, then 7, maybe 9, 200, okay, 1 2 4 7, रैंडम कुछ वैल्यू सबको स्टोर करना है, that is up to you. And finally here I will take the method, you can see here methods, okay, add node है, delete node है, process all nodes है। so process all nodes को कॉल करूंगा मैं, कॉल करने के बाद ये हो गया पहला वाला रो। ओके, अब हमने क्या किया, ये जो जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन को, ये जो जेनरिक क्लास है, ये जो जेनरिक क्लास को हमने इंस्टेंशिएट किया है, इंस्टेंशिएट करके वो टाइप हम रन टाइम पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, दिस इज ऑफ द टाइप इंटीजर। अब इंटीजर है तो ये इंटीजर का वैल्यू सबको स्टोर करना पड़ेगा। ओके, एंड ऐसा ही कर सकते हैं क्या, नो। सेकंड चीज क्या है कि मैं एक और कलेक्शन लूंगा विच इज ऑफ द स्ट्रिंग टाइप, ओके, एंड हियर आई विल पास विथ सम स्टूडेंट नेम्स। हियर आई विल टेक Ravi, here I will take Mohan, then इसमें error क्यों दे रहा है, represents text as a sequence of UTF characters, cannot convert from string to सर वो int node ये स्टार्टिंग में लिखा है। oh sorry this have to change, yes, this have to change, I change that, and here then Rakesh, then Supreet, ऐसा आप कुछ डेटा वैल्यूज ले सकते हैं। लेने के बाद एज यूजुअल जैसे वो मेथड का प्रोसेस ऑल नोट्स के अंदर जो मेथड के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, इसको भी प्रिंट करेंगे। तो देखो ये इंटीजर का नोट्स है, जितने भी वैल्यू से हमने इंटीजर डेटा टाइप का ही लेगा वो। एंड आप देख भी सकते हैं, जैसे मैंने इसको इंटीजर नोट्स दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको इंटीजर ही पास करना है करके। इट विल गिव यू, मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो code of for this type, see the reference source and cannot convert from string to int, आपको compilation error देगा यहाँ पे। so then we can correct the coding as per your given statements, okay। so ऐसा करने का तरीका है। similarly आप एक और डेटा टाइप बना सकते हैं यहाँ पे, maybe of okay, so maybe of a bool, okay, ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द एडवांटेज इज द कोड रीयूजेबिलिटी, ये एक ही बार हमने टेम्पलेट बनाया, ओके। सो ये जो टेम्पलेट बनाया हमने, वो टेम्पलेट को हम यूज कर रहे हैं बार बार। कभी मैं डायनेमिकली इंटीजर पास कर रहा हूँ, कभी मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ डायनेमिकली,
कभी मैं बुलियन पास करूंगा, कभी मैं शॉर्ट पास करूंगा, लॉन्ग पास करूंगा, फ्लोट पास करूंगा, है ना, दैट इज अप टू यू. सो द कोड reusability is there, the code reusability is there, and we are achieving the same function कि we are achieving the same feature. उसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, उसमें मैं कुछ डिलीट भी कर सकता हूँ, उसमें मैं कुछ प्रोसेस भी कर सकता हूँ. ओके, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, किसी को आ रहा है क्या क्वेश्चन? सर वो न्यू नोड वगैरह इनबिल्ट मेथड है क्या सर? न्यू नोड कहाँ पे? ये वो हाँ सर. ये तो पैरामीटर है. पैरामीटर. ये पैरामीटर है ना, जैसे आप पैरामीटर को स्पेसिफाई नहीं करेंगे स्ट्रिंग एस, ऐसा है, ये पैरामीटर बन गया ना. जी अच्छा सर, हाँ न्यू नोड के बदले में आप एक्स ले लो, ये भी चलता है. हाँ हाँ अब वो जस्ट सिंबॉलिकली लिया मैंने, ठीक है, ये जस्ट पैरामीटर है अपना, और जो भी पैरामीटर है वो हम ऐड करते जा रहे हैं. अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप एस करके टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो हाँ, इसमें क्लैरिटी आता है ना, इसमें क्लैरिटी आता है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टाइप्ड. अब इसमें एडवांटेज क्या है? हाँ, एडवांटेज तो मैंने बताया, लेकिन आपको एक डाउट आना चाहिए, किसी को आया क्या? किसी को आया, मतलब ये देखने के बाद तो डाउट तो आना चाहिए था नेचुरली, विदाउट दिस पर्टिकुलर सी शार्प, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड डाउट आना चाहिए. नहीं आ रहे? ठीक है, मैं बताइए. देखो, ये हम जो कर रहे हैं ना, कभी कभी इंटीजर ले रहे हैं, कभी मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ. आपको ये डाउट आ सकता है कि सर ये तो हम ओवरलोडिंग के थ्रू भी तो कर सकते हैं, है ना. सपोज मैंने ऐसा एक मेथड बनाया, इसमें मैं इंटीजर बनाया, ठीक है, और इंटीजर cannot convert from int to t. ये एक्चुअली दोनों क्लैश हो रहा है ना, तो मैं अभी इसको क्या करूंगा, स्ट्रिंग एस न्यू नोड. अच्छा अच्छा अच्छा, दिस नोड्स इज, वेरिएबल नेम चेंज. वो एक्चुअली ये टी टाइप का ले रहा है ना, एक्चुअली इसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, दूसरा कुछ मेथड ले सकते हो. अब ये तो इंटीजर आई ले लेता हूँ, ठीक है, अब ये इंटीजर आई ले लेता हूँ, और ये नोट्स को अटैच कर देना. ये जब तक नोट्स का है ना, जब तक ये प्रॉब्लम देगा नहीं. सपोज मैं राइट करूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा. टू स्ट्रिंग करने के बाद एक्चुअली टाइप सेफ्टी है ना सी शार्प, तो बहुत ही चेक करता है वो. अब देखो एरर नहीं आया, तो इसको भूल जाओ, फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ. देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन copy, this is paste, same method है. right now I will write here as string. ठीक है, अब ये भी चलेगा. ठीक है, अब एक और मैं मेथड को ऐसा बनाऊंगा, बोल, ये भी चलेगा. सी द डिफरेंस, ये भी ऐड नोट्स है, ये भी ऐड नोट्स है, ये भी ऐड नोट्स है. ओनली डिफरेंस इज आई एम चेंजिंग द पैरामीटर. कभी मैं इंटीजर पास कर रहा हूँ, कभी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, कभी मैं बुलियन पास कर रहा हूँ. तीनों मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन करूंगा ना, ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे. लेकिन जो मैं कॉल करना पड़ेगा ना, कॉल करके वैल्यूज को पास करना पड़ेगा. अभी तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट सिंबॉलिकली तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अलग अलग एक ही मेथड को ओवरलोड करके मैं यूज कर सकता हूँ ऐसा. अब यही चीज यहाँ पर भी तो कर सकता हूँ मैं, है ना. तो ये डाउट आपको नेचुरली आना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज, जब आपके मेथड के अंदर द लॉजिक इज सेम, इसके अंदर भी आप क्या कर रहे हैं. अब ये तो बहुत सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने कंसोल डॉट राइट लाइन किया, बट नॉर्मली कभी कभी बड़े बड़े आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और उसमें भी आप वो सेम चीज वही कर रहे हैं. सेकंड वाला मेथड में भी सेम चीज वही कर रहे हैं, थर्ड में भी आप वही कर रहे हैं. ओके, सो इन दोस केसेस आप 10 तरीके के लिए 10 मेथड बनाओगे क्या, फॉर हैविंग द सेम लॉजिक? इट इज नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया, इजंट इट? तो ऐसा कर सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, बट इट इज नॉट ए गुड आइडिया. Because when you have the same logic in your program, only difference is, only matter is your data type. Then in those cases we generally don't go for the overloading. अब overloading के लिए नहीं जाएंगे, whereas you will go for this kind of generics. So generics में क्या होता है कि आपका headache खत्म हो जाता है, आपका logic सेम रहेगा,
बट इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो टेम्पलेट में। ये आपका टेम्पलेट बन गया, टेम्पलेट में ओवरलोडिंग का आप फीचर एक्सपोज करके फिर कॉल करेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पर ही आप ओवरलोड करेंगे, ओवरराइड करोगे। ठीक है, सो दैट इज द एडवांटेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस कॉल्ड एज टेम्पलेट्स। इसको हम टेम्पलेट्स भी बोल सकते हैं, C++ में टेम्पलेट ही है ये। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज टेम्पलेट्स। अभी समझ में आ गया? तो डायनेमिकली मैंने इंटीजर भी पास किया, डायनेमिकली मैं स्ट्रिंग भी पास कर लिया, कुछ और भी पास कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक डेटा टाइप। दिस इज नॉट एट ऑल टाइड टू, ये बंधे हुए नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ कंप्लाइंस नहीं है। आपके ऊपर है, रन टाइम के ऊपर है, आपको कैसे वो डेटा पुश करना है, कैसे वो डेटा को रिट्रीव करना है। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं, इसमें एरर आ रहा है। What is that error? We will see first of all. Program does not contain a static main method. इसमें main method नहीं। Okay. What I have messed up with is, I think ये जो क्लास है ना, ये क्लास को मैं cannot be generic or in generic type। अच्छा, इसके लिए दूसरा क्लास बनाना पड़ेगा मुझे। ओके, सो इसके लिए मुझे दूसरा क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास माई क्लास, देन ये दे दें मुझे, तो आपका वो चला गया। ठीक है, नो what is the second error? Second error is namespace definition or end of file expected। end of file वो भी हट गया। मैं can run and see the answers। जहां तक का अपना इंटीजर्स है वो इंटीजर्स को प्रिंट कर रहे हैं। देन द सेकेंड कलेक्शन इज फॉर द स्ट्रिंग्स, ये भी स्टोर कर रहे हैं और ये भी प्रिंट कर रहे हैं। सो बोथ आर पॉसिबल। सो इन दैट वे वी कैन क्रॉस चेक बाय स्टोरिंग सम वैल्यूज रैंडमली। ये गिवन कलेक्शन, ये मेरा इंटीजर का कलेक्शन है, एंड सेकंड टाइम मैंने लिया स्ट्रिंग का कलेक्शन। सो दोनों को हम पैरेलली हम स्टोर कर सकते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग द क्लास इटसेल्फ। तो अब अगर आपको 10 डेटा टाइप्स को स्टोर करना है, 10 डेटा टाइप्स को रिट्रीव करना है ऑन एंड ऑफ, तो आप 10 टेम्पलेट्स नहीं बनाएंगे, टेम्पलेट एक ही बनाएंगे। ओके, सो दिस इज योर टेम्पलेट, एंड वो टेम्पलेट को जब इंस्टेंशिएट करेंगे, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द डेटा टाइप प्रॉपर्ली। वो इंटीजर होना चाहिए, कोई स्ट्रिंग होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल में चेक किया है, सो हियर यू कैन प्रोवाइड एज मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज एज पॉसिबल। ये अनलिमिटेड आप स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज completely a list, so list ka nearly like lakhs of data you can push। so normally apne programming mein itna requirement nahi aata। okay, so you can push as many data as possible and you can store that and you can retrieve that also, as we have seen in the demonstration। ये ऐसा रन करके आपको दिखाएगा। so any doubts from this example? ये आपको समझ में आ गया? Yes, sir. now this is called as generic class। अब आपको ये समझ में आ गया कि जेनरिक क्लास क्यों लेना चाहिए, उसका एडवांटेज क्या है, और उसका ऑल्टरनेटिव भी है, बट ऑल्टरनेटिव का डिसएडवांटेज क्या है वो भी हमने चेक कर लिया, है ना। तो हमने ओवरलोड करके भी चेक कर लिया उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको लॉजिक बार बार बिल्ड करना पड़ता है। व्हेन योर लॉजिक इज सेम, यू डोंट वांट टू फोकस ऑन योर डेटा टाइप्स। आपको डेटा टाइप्स को भी लेना देना नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम हाउ टू ऑपरेट दैट डेटा टाइप। Then in those cases, the generics are the ideal implementations। So in this case, we have created the generic class, and sometimes you can create the generic method also। Now it has become the generic method। Okay, then generic functions भी बना सकते हैं, indexes बना सकते हैं, delegates बना सकते हैं, interfaces बना सकते हैं। So generic you can take any type, generic type। okay, so that is the advantage, and generics are mostly used to create the collection of classes, and they can also be created with the methods, interfaces, delegates and events। and type safety का आपको टेंशन नहीं रहता इसमें,
टाइप सेफ्टी चेक करने के लिए आपको कंपाइलर बिफोर हैंड आपको कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा. इफ आई एम गिविंग हियर इंटीजर, देन आपका रेस्ट्रिक्ट करेगा वो. ये अभी आपको कंपाइलेशन का एरर देगा इन द सेकंड वन. ये प्रॉपर्ली मैं इसको करूंगा ना, ये आपको कंपाइलेशन एरर देगा. ठीक है, बिकॉज यू आर restricting this particular type to an integer type. So जैसे आपने integer type कर लिया तो ये error देगा. Then we are not achieving anything. इसमें कोई फिर advantage आपको normally कुछ नहीं मिलेगा. जो पहले का अपना example था array list वाला जो है ना, वो इससे बेटर काम करेगा. ये इससे बेटर काम करेगा. थोड़ा बहुत आपका बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग का प्रॉब्लम आएगा, बट अनबॉक्सिंग अगर आपका वैल्यूज ज्यादा नहीं है तो अनबॉक्सिंग का भी आपका परफॉर्मेंस पेनल्टी ज्यादा नहीं रहेगा. बट इफ यू डोंट वांट टू मेस अप विद दैट अनबॉक्सिंग एंड आप सेफली प्ले करना चाहते हैं विदाउट गोइंग फॉर द टाइप सेफ्टी चेकिंग बाय द कंपाइलर, देन दीज आर द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट योर प्रोग्राम. गॉट इट? एनी डाउट्स फ्रॉम दिस? हेलो सर. यस. सर इस पे एग्जीक्यूशन टाइम पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या इसका? कुछ नहीं पड़ेगा. एग्जीक्यूशन टाइम पे कुछ नहीं पड़ेगा, बिकॉज रन टाइम पे ये डिसाइड कर रहा है कि इसको कौन सा डेटा टाइप एलोकेट करना चाहिए करके. सो नॉर्मली आपका जो एरे लिस्ट के साथ जो हमने किया ना, उससे तो फास्ट चलता है, उससे फास्ट चलता है. इसमें क्योंकि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग हो ही नहीं रहा है ना, इसमें बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग हो ही नहीं रहा, बिकॉज इन द डिक्लेरेशन इटसेल्फ वी हैव गिवन दैट इट इज एन इंटीजर डेटा टाइप. तो वैल्यूज इंटीजर ही जाएगा और जो बाहर आएगा ना वो इंटीजर ही आएंगे. सो वहां पे अनबॉक्सिंग नहीं होता. ओके सर. बट एरे लिस्ट में क्या होता है कि एरे लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट. एरे लिस्ट के अंदर आप कुछ भी पुश कर सकते हैं, कुछ भी आप रिट्रीव कर सकते हैं. तो जो प्रीवियस एग्जांपल अभी तो हमने निकाल दिया, तो प्रीवियस एग्जांपल में आपको एक्सक्लूसिवली आपको टाइप कास्टिंग करके यूज करना पड़ता है, लाइक दिस. ऐसा आपको टाइप कास्टिंग करके लेना पड़ता है वैल्यूज को. सो नोड ऑफ न्यू नोड, ऐसा आपको कॉल करना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली. तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, है ना. अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग करेंगे. तो इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस का पेनल्टी आता है. सो दीज आर बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट. इसमें ऊपर से परफॉर्मेंस आपका बूस्ट होगा. ओके. सो इसीलिए जो डॉटनेट फ्रेमवर्क में बाद में जो ऐड किया गया ना, वो आपका एडवांटेज ही रहेगा, डिसएडवांटेजेस नहीं रहेगा. ओके. सो अदरवाइज वो फीचर इंप्लीमेंट ही नहीं करते थे वो. अगर वो चीज एरे लिस्ट के साथ कर सकते थे, फिर अलग से ये जेनरिक्स करके क्यों दिया है? ओके. सो दैट इज द advantage that we are getting from the generics. Any more doubts? Any more doubts? No, sir. Okay. So completely समझ में आ गया generics का यूज क्या है ना. तो मैं प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ समझा दिया, क्योंकि इसमें आप टाइप का सेफ्टी का कोई भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. Dynamically in your program you can write whether it should be a short, whether it should be a bool, whether it should be a long, float, double, decimal, okay, integer, string, char, जो भी पुश करना है आप पुश कर सकते हैं. वैल्यूज इट विल मेंटेन ऑटोमेटिकली. उसके लिए आप एक ही बार बना रहे हैं. ये जो टेम्पलेट बन रहे हैं ना, ये बार बार मैं इसीलिए टेम्पलेट बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका सी के साथ आप रिलेट कर सकते हैं. सी में जो टेम्पलेट्स बोलते हैं ना, सो दे आर नथिंग बट द सेम दिस काइंड ऑफ फीचर. एंड डॉटनेट में वो टेम्पलेट स्टैटिक रहता है. ये जो सी में स्टैटिक रहता है, बट इसमें आप ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं. ये रेफरेंस टाइप भी आप बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है ना. न्यू मतलब हमने इंस्टेंशिएट कर चुके हैं और उसका वैल्यूज कुछ भी किया है. सो टेम्पलेट्स इन द सी आर नथिंग लाइक दिस, नथिंग बट दिस जेनरिक्स इन द सी शार्प और जेनरिक्स इन द डॉटनेट फ्रेमवर्क. ये सी शार्प में ही नहीं है, ये आपका VB.NET में भी आएगा, F शार्प में भी आएगा. डॉटनेट फ्रेमवर्क का फीचर है ये. So this feature is from the .NET framework. So this is the best example that we can see how it is. We can take advantage of this generic collection. But ultimately it is a collection. Okay. So ये collection आ रहा है आपको यहाँ से, collections.generic से आ रहा है. ये यहाँ से नहीं आ रहा है. ये इसके अंदर आपको क्या क्या आता है, array list आएगा, है ना. Suppose I will declare here array list A. And here I will declare dictionary D. आप देख सकते हैं यहाँ पे system.collections.arraylist. Okay.
एंड सेकेंड वन, अच्छा ये डिक्शनरी का उन्होंने अंदर में लेके गए, जेनरिक क्लास के अंदर लेके गए, हैश लिस्ट आएगा, हैश टेबल आएगा। ओके, सो दिस हैश टेबल इज अगेन दिस टेबल इज, देखिए यहाँ पे system डॉट कलेक्शंस डॉट हैश टेबल, ये प्री डिफाइंड कुछ 4-5 क्लासेस उन्होंने बनाए हैं। अब उनका क्या है कि रोल वो की वैल्यू पेयर में मेंटेन करने के लिए ये देखता है, ये लिस्ट टाइप में विदाउट हैविंग द इंडेक्स आउट ऑफ एरे एक्सेप्शन के लिए एरे लिस्ट का हम यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ स्पेसिफिक क्लासेस बनाए हैं, बट इसके ऊपर भी उन्होंने जो जो जेनरिक फीचर्स के इम्प्लीमेंट करने के लिए जेनरिक के थ्रू एक अलग नेम स्पेस के थ्रू उन्होंने एक्सपोज किया। सो दैट्स व्हाई अगर आपको ये वाला यूज करना है तो आपको system डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक यूज करना पड़ेगा, एरे लिस्ट वाला यूज करना है तो आपको ये कॉल करना पड़ेगा, because these namespaces are having those classes. Okay, then सर एक हाँ। 18 नंबर लाइन है जो टी को रिप्लेस करके इंट वगैरह फिर वो उसी टाइप के लेंगे। रन टाइम पे लेगा वो, यहाँ पे हाँ। डिक्लेयर में नहीं, रन टाइम पे लेता हो। ये जो ब्लूप्रिंट हो गया है आपका क्लास का डेफिनेशन, ये क्लास ही है ना, ये क्लास है। बट जनरली क्या करते हैं हम क्लास के अंदर भी, हम सपोज एक मैंने लिस्ट लिया है ऑफ इंटीजर एंड ये मैं ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा मैं बना सकता हूँ। अब ये प्री डिफाइन कर देगा, ये भी क्लास के अंदर ही है, लेकिन ये टाइप को बाइंड करके रखता है, जब भी ये आएगा है ना ये इंटीजर ही चलेगा, ऐसा वो क्लास के अंदर मतलब इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब आपको स्टैक के अंदर वैल्यूज को जो मेमोरी को रिजर्व करना पड़ता है ना, इंटीजर तो क्या करेगा, वो अकॉर्डिंगली वो डिफाइन करके रखता है, अकॉर्डिंगली वो स्टैक के अंदर वो मेमोरी को एलोकेट करता है। बट यहाँ पे क्या है कि इसको पता ही नहीं है क्या टाइप आने वाला है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी टाइप आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर स्टोर्ड ऑन हीप, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके सर, अब इसके जब रिलेटेड, हाँ हाँ इसके रिलेटेड ये है, अगर मुझे इंट और डबल ही चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो हाँ, फिर दो टाइप कैसे दे सकते हैं? दो टाइप कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे कॉल करते टाइम यहाँ पे ले नहीं, लेना। हाँ, हाँ पर यहाँ पे मतलब रेस्ट्रिक्ट करना है कि अगर स्ट्रिंग भी आ जाए तो उसको अलाउ नहीं करना है। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपका लॉजिक सेम है, ये पूरे वो जो क्लास के अंदर लॉजिक सेम है, अगर आपके इंट में, स्ट्रिंग में, डबल में अगर आपका लॉजिक सेम है, देन यू विल गो फॉर दिस जेनरिक। अगर आपका लॉजिक सेम नहीं है, अगर इंट के लिए अलग ले रहे हो, डबल के लिए लॉजिक अगर आप अलग बना रहे हो, देन आपको फिर ओवरलोडिंग यूज करना पड़ेगा। ओके, मतलब एक चाहे पर्टिकुलर डेटा टाइप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। नहीं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना, रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे तो मैं कंस्ट्रेंट के बारे में पूछ रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स के बारे में, हाँ वो मैं बताता हूँ, कंस्ट्रेंट्स भी है ना एग्जांपल, वो मैं तो बताता हूँ। ओके। अब ये है हो गया जेनरिक विद ऑल द डेटा टाइप्स। अब इसमें आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब मैं रन टाइम पे यहाँ पे इंटीजर भी ले सकता हूँ, रन टाइम पे मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, है ना। तो मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, अभी मतलब आपके सारे जो डेटा टाइप्स है ना इसके लिए एप्लीकेबल है। इसमें इंट भी आ जाएगा, शॉर्ट, यू बाइट, एस बाइट, देन डबल, लॉन्ग, फ्लोट, डेसिमल, सब कुछ आ जाएगा। बट आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको कुछ लिमिट लेना चाहिए, बट कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, देन इन दैट केस वी हैव ए second kind of feature that is called as constraints. Okay, so where we are going to provide the यहाँ पे आपको क्लास का नाम दे सकते हैं, देन स्ट्रिंग, ओके, जैसा दे नहीं सकती है, नेम कैन बी इंटीजर नॉट ए वैलिड कांस्टेंट। ओके, इसमें यहाँ पे क्लासेस या डेटा टाइप्स लेता है। सपोज मैं अगर ऐसा एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। ओके, सो इसमें क्या होगा, ये जो क्लास डेटा टाइप है, ये जो क्लास डेटा टाइप मतलब आपका स्टूडेंट हो सकता है, अभी तो बना हुआ नहीं है। ओके, सपोज आपने एक बनाया है यहाँ पे इंटरनल क्लास स्टूडेंट, ऐसा आपने कुछ तो भी एक बनाया। अभी मैं इसको एग्जांपल ज्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। ये मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि विद दिस टाइप ओनली, तो ये वेयर कंडीशन आपको लेना पड़ेगा, वेयर टी मींस टाइप, वेयर द
type is only of the data type student or some another class where the type is only of the faculty class. Okay, so यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, faculty ये भी दे सकता हूँ मैं. अब ये क्या करेगा, restrict करेगा class type constraint faculty must come with any other constraint दे सकता हूँ मेरे से student faculty must come before any other constraint. Why this? Suppose ऐसा करके देखिए faculty. No, this is complaining. हाँ, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा why it is complaining. Okay, so फिलहाल के लिए हम काम करेंगे, स्टूडेंट को रखेंगे. So this is how we can provide some restriction to your template. So this is your generic class template. Okay, अब हम क्या करेंगे, ये जब तक ये स्टूडेंट डेटा टाइप का नहीं होगा आप उसके अंदर वैल्यूज को पुश नहीं कर सकते हो. So that's why you can see here the compilation error. ये जैसे हमने इंटीजर दिया, it is not of the type student, so that's why it is giving the complaint. So अब इसको build भी करना चाहते हैं तो ये errors देगा. There is no boxing conversation from int to student, है ना. So implicitly जो call करके दे सकता है वो भी नहीं करने दे रहा. So that's why we cannot proceed ahead. We cannot go ahead because we are restricting the data type to this particular type only. So where condition जब आप लगाते हैं तो where condition पे आपको ये टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा और वो कौन सा टाइप है आपको ये अटैच करना पड़ेगा. बट जनरली मल्टीपल टाइप्स भी लेता है. यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा, आई हैव टू क्रॉस चेक. ये तो लेता है वैसे जनरली, आई हैव टू क्रॉस चेक. सो दिस इज हाउ वी कैन रेस्ट्रिक्ट generic implementation. So these are called as generic constraints. मतलब 10 डेटा टाइप से उसमें आपको 5 ही डेटा टाइप के साथ आपको काम करना है, बाकी 5 के ऊपर आपको नहीं करना है. तो यू कैन प्रोवाइड हियर द रेस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स. तो वो क्या करेगा, ऐसे ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट करके दे देगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत. ओके, एंड सपोज इफ आई से ये तो इंटीजर वैल्यू लेता है, इंटीजर वैल्यू सिस्टम डॉट int 32 ये भी नहीं ले रहा. इसका मुझे एक बार एग्जांपल चेक करना पड़ेगा, बट नॉर्मली ये सब होता है. ओके, सो अदरवाइज आपको एक ही अगर करना है सो डायरेक्टली यहीं पे कॉल करो इंटीजर. सो वो ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट कर देगा. सो जब आपको इंटीजर ही करना है तो यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट करके दे देगा. सो इसको भी आपको इंटीजर करना पड़ेगा, है ना. सो इसको भी इंटीजर करना पड़ेगा. ऐसा वन बाय वन आपको सब चेंजेस करते जाना पड़ेगा. सो दिस इज what we call as generics. Apart from this, any doubts? ये आपका एग्जांपल generics मैं सेंड कर दूंगा. परसों दूसरे ग्रुप में पोस्ट कर दिया, मैं दिखा ही नहीं था, इसलिए कल मुझे पोस्ट करना पड़ेगा. दूसरे कुछ और ग्रुप उसमें डाल दिया मैंने. इसमें कोई डाउट है क्या? इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. So generics clear? Yes sir. So generic classes हमने चेक कर लिया. generic methods को भी अगर generic कुछ नहीं है, सिंपली आपको ये टाइप दे देंगे ना, generic टाइप बन जाता है, list of type. Then generic, non generic. So I collection, I list, I dictionary, all these are interfaces. So ये जो interfaces भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, generics को भी अटैच कर सकते हैं. ओके, so I collection का हमने शायद पहले चेक कर लिया था. collection, I list ये बाय डिफॉल्ट आपको इंटरफेसेस है, तो आपको इंटरफेस है तो क्या है, मैंडेटरी है, तो इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा. अगर बिना इंप्लीमेंट का अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो एरर दे देगा. ठीक है. देन वी विल सी द टुपल्स. सो टुपल्स आर लाइक स्पेसिफिक डेटा है आपके पास, तो मैं रिमूव कर दूंगा, ये सबको रिमूव कर दूंगा फिलहाल के लिए. एंड आई विल रिमूव दिस आल्सो. ओके, सो टुपल्स was introduced in .NET framework 4.0, 4.2. Okay, so this is a data structure. So this is a
data structure that contains a sequence of elements of different data types. देखो ये भी कलेक्शन ही है, ये भी एक काइंड ऑफ कलेक्शन ही है, बट हम इंटीजर डेटा टाइप लेंगे तो सभी इंटीजर डेटा टाइप लेना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे तो सभी स्ट्रिंग का डेटा टाइप लेना पड़ेगा, बट यूजिंग द टुपल्स वी कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स. सो अगर आपने डेटाबेस पढ़े होंगे डीबीएमएस में आपको बताया जाता है नॉर्मली देयर आर टुपल्स एंड और कौन सा दूसरा एट्रीब्यूट्स बोलते हैं कभी कभी, ठीक है. सो टुपल्स एंड एट्रीब्यूट्स. सो टुपल्स आर योर रोज, एट्रीब्यूट्स आर योर और प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं. सो दे आर योर कॉलम्स. सो ये कॉलम्स बनते हैं एक्चुअली डीबीएमएस के जो थियोरेटिकल नॉलेज में. टुपल्स मतलब दे आर बिकमिंग द रोज. सो रो है तो आपको एक स्टूडेंट का रो है तो स्टूडेंट के एक आईडी रहेगा, स्टूडेंट के एक नेम रहेगा, स्टूडेंट का एक रोल नंबर रहता है, स्टूडेंट का एक ईमेल आईडी रहता है, फोन नंबर रहता है ना. सो this is of the integer data type, this is of the string data type, this is again integer, this is string, this can be a string or this can be an integer, है ना. तो ऐसा आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको लेना पड़ता है. ई स्टूडेंट पास्ड आउट और इज एक्टिव जैसा आपने, ये हो गया आपका बुलियन. सो ये आपका कंप्लीट टुपल है. ये टुपल के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को मेंटेन करना पड़ता है. सो इसका फैसिलिटी आपको उन्होंने दिया है यूजिंग दिस फीचर कॉल्ड एज टुपल्स इन द .NET फ्रेमवर्क. सो उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? उसको डिक्लेयर करने के लिए सपोज where you public show tuple, जैसे एक सिंपल एक मेथड ले लेंगे, देन where क्या करना है, so where e1 is equal to, so tuple is a static class, you can see here system.tuple. Okay, so tuple is a, and here symbolically we are getting the intelligence completion of the statement also, create one to. So जो भी आपको create करना है, suppose मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I will write here India, then independence, then third में I will provide here 1947. So जितने भी आपको वैल्यूज, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया, जितने भी आपको वैल्यूज प्रोवाइड करना है ना, ये सब वैल्यूज ऐसे आप प्रोवाइड करेंगे. प्रोवाइड करने के बाद सिंपली यू कैन कॉल राइट लाइन बाय सो ये वेरिएबल को अंदर से कॉल करना है ना, सो डबल कोट्स के अंदर से कॉल करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डॉलर सिंबल के साथ अटैच करते हैं. So this becomes your u1 dot item 1, then u1 dot item 2, then is India got independence. देखो अब मैं कंप्लीशन कैसे कर रहा हूँ सेंटेंस को, आप ध्यान दो यहाँ पे, so that आपको ये ऐसा क्यों दिया आपको समझ में आ जाएगा. I am filling the data inside a particular statement which is a meaningful statement. अब मैं वैल्यूज यहाँ से ले रहा हूँ, जैसे आपका डेटाबेस का ये रो है, डेटाबेस के रो में आप कभी फोन नंबर को डिस्प्ले करेंगे, कभी आप ईमेल को पुश करोगे, कभी आप नेम को डिस्प्ले करेंगे, है ना, कभी आपको रोल नंबर को कोड करना पड़ता है. सिमिलरली आई एम टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम हियर बाय स्पेसिफाइंग लाइक दिस. सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन करूंगा तो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है. ठीक है. सो हियर आई एम कंप्लीटिंग दिस and what I will do is just simply call this method. ये जो class का instantiate करूँगा, tuple sample t is equal to new, then call this show tuple. That's all. Okay. So let us run this. आपको print करके मिल रहा है. So this is a meaningful statement that we are getting. India got independence in 1947. So टपल्स का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि
पहले वाले एग्जांपल में जब आपका जो टाइप मैंडेटरी बन जाता है एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइप का, अगर आप पास कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे ट्रिपल भी पास कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आप कभी भी इंटीजर लेना है तो सारे वैल्यूज इंटीजर का होना चाहिए। स्ट्रिंग लेते हैं तो सारे वैल्यू स्ट्रिंग होना चाहिए। सिमिलरली बूल होते हैं तो सारे वैल्यूज बूल होना चाहिए, है ना। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दैट। बट हियर you can take any kind of data type by using the tuples, and here it is the example how we can get back to the all the information which is available in the tuple to to properly create a formal statement. So that's why we are getting the statement like this. ये आपका जो डेटा है डेटाबेस से भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है ना। यहीं से आना ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये यहाँ पे डेटाबेस को कॉल करेंगे तो डेटाबेस का डेटा आएगा यहाँ पे, और सिंपली U1 is your tuple and item 1, item 2, item 3 are the default values. ये जो कलेक्शन के जो अंदर का जो वैल्यूज है वो आपको गेट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। सो वन मोर एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपको बेटर समझा देता हूँ। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर tuple here. Here in this case I am taking a tuple of different type which is string, second is also string. यहाँ पे मैं कंप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा टाइप को स्पेसिफाई करके कर रहा हूँ, इसमें नहीं किया मैंने। सो बाय डिफॉल्ट आप जो भी पास करेंगे तो आप वो रन टाइम पे वो एक्सेस करेगा। बट इसमें मुझे करना है कि पहले दो स्ट्रिंग होना चाहिए, तीसरा वाला इंटीजर होना चाहिए, है ना। एंड आई एम क्रिएटिंग द, इसका इंस्टेंशिएट कर दूं, where author is equal to new tuple, ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। where author is equal to new tuple and dot create नहीं आएगा, डायरेक्टली आप वैल्यूज दे सकते हैं, महेश Shen, and this is LDO.NET programming, and which is written in 2003. 130. Okay. So what I will do here I will write again a meaningful statement so that you can understand what I want to print. Okay. So प्लेस होल्डर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुझे ऐसे ही कॉल करना है। तो मैंने प्रीवियस स्लॉट में जो दिखाया था वो भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो इस केस में आपका डबल कोट्स आएगा, डबल कोट्स के अंदर ऑथर 0 wrote his first book title. This is the second placeholder and this is the third placeholder. Okay, so it is getting completed, and here we are going to call the tuple for getting the first item, and then we are getting the second item, and we are getting the third item in this way. Okay, देखो ये वाला एग्जांपल में ये वाला एग्जांपल में हल्का सा डिफरेंस है। डायरेक्टली एक टुपल क्रिएट किया मैंने, ये वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, दिस इज अ var, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप नहीं है ये, इसलिए मैंने उसमें var में स्टोर किया। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे it is by default identifying the first parameter is string, second parameter is string, third parameter string, जो कि हमने यहाँ पे दिया है एग्जैक्टली, है ना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटीजर, ये डायनेमिकली अटैच कर लेता है। ये एरर भी दे रहा है बिकॉज आई हैव नॉट गिवन द इंटीजर एंड एज आई हैव गिवन द स्ट्रिंग, इट इज कंप्लेनिंग ये 2003 आप ऐसे दे नहीं सकते करके। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ इट इज सेटिस्फाइड। ओके, अब इसको रन करो। रन करने के बाद कौन सा एरर आया, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट इज क्लोज्ड हियर, ये इसकी जरूरत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, अपना ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। Now let us run this. Okay, so the first part is also printing. The second part is also author Mahesh Jain wrote his first book on in 2003. ये भी हम print करके दे रहे हैं। So this is the advantage of using the tuples. जब भी आपका जो डेटा है completely variable है, the data types are not matching at all, and उसमें आपको particularly कुछ restrictions apply करना है in your data, है ना। So only take this kind of data only,
ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग 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 पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग 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 डबल पास कर सकते हैं। सो जब भी आपका डेटा टाइप को कंप्लायंस भी देना है एंड वो प्रॉपरली एक वेरिएबल के अंदर उसको लेना भी है, तो आप यूज कर सकते हैं। नाउ अगेन यू शुड गेट ए डिफरेंट डाउट इन योर माइंड्स। जो भी आपको जो प्रीवियसली पढ़ाया होगा ना, उसमें से भी आपको एक डेटा एक डाउट आना चाहिए। किसी को आ रहा है क्या? नहीं आ रहे? ये जो डेटा देखने के बाद आपको अल्टीमेटली दिस इज डेटा, ओके, तो आपको कोई डाउट आना चाहिए कि हम वो क्यों यूज नहीं कर सकते। नहीं आ रहा? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। स्ट्रक्ट्स आपने पढ़ा है ना, तो स्ट्रक्ट्स में अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, है ना। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम पुश कर सकते हैं एंड which should not be a full blown class in itself, and it should take care of mostly the value type of whatever the जो भी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो भी हम स्ट्रक्ट में स्टोर करके ले सकते हैं। सो देन व्हाई वी नीड टू यूज दिस टुपल्स? कैन एनीबॉडी? आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, स्ट्रक्ट लेना तो वहाँ यहाँ पे स्ट्रक्ट भी ले सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने जो डेटा सेव किया ना, वो स्ट्रक्ट के थ्रू भी आप ले सकते हैं, उसके थ्रू भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, इसमें कंपाइलेशन एरर भी नहीं आएगा। बट इफ यू सी द कोडिंग हियर, it will give you the most flexibility and these are actually the static classes। यहाँ पे है ना, ये static classes है, आपको फिर मेमोरी के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड इसका जो परफॉर्मेंस भी काफी इम्प्रोवाइज्ड है rather than to go if you are going for the structs, है ना। एंड structs are mostly value types है, so value types है तो आपको कुछ restrictions भी मिलेगा। आपको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, structs को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, whereas you can clearly see here we are getting the object of this particular entire data like a database object, like a database tuple object. So that is the one more reason to go for the tuples. Got it? Yes, sir. Any doubts? Any doubts? No, nothing, sir. Okay. अब ये टुपल्स को आप पास भी कर सकते हैं, है ना। पास करना मतलब जैसे ये भी एक डेटा टाइप बन गया है। अब ये डेटा टाइप को मैं पास करना चाहता हूँ इन माय ओन मेथड, गेट टुपल डेटा समथिंग लाइक दैट, मैं जैसे नाम दिया हूँ मैं, और यहाँ पे मैं डेटा टाइप बता रहा हूँ एज दिस टुपल, एंड ये जो टुपल है ना, मैं जो सेंड कर रहा हूँ इसका डेटा टाइप मैच होना चाहिए। string integer, string integer. Now I can send the author information inside this, okay, so इसके अंदर मैं author information को send कर सकता हूँ and directly I can print this also। देखो मैं अंदर में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये author को पास कर रहा हूँ, author का values यहाँ से get कर रहा हूँ, है ना। and I will call this method from here, ये भी show कर देता हूँ, get tuple data and pass this author, that's all। हो गया। फिलहाल के लिए दोनों को कमेंट कर देता। देखो ये जो फीचर है ना, मैं एक मेथड के अंदर ला रहा हूँ, इसको कमेंट नहीं कर सकता मैं, ऊपर वाला को कमेंट नहीं कर सकता मैं। ये जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट को मैं कट करके यहाँ पे लेके आया मैं, ओके। सो असाइन यहाँ पे हो रहा है, मेथड के अंदर कॉल हो रहा है, और ओनली टू शो द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैसे उसको पास कर सकते हैं इनटू डिफरेंट मेथड एज ए पैरामीटर। ये अभी पैरामीटर बन गया। अभी आपका आउटपुट तो सेम ही आने वाला है, आउटपुट में आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर डूइंग द सेम थिंग। या तो आप डायरेक्टली कॉल करो यहाँ से, या तो मेथड के अंदर पास करके या ऐसा कॉल करो, बोथ आर सेम। सो ये हो गया टुपल्स को मेथड के थ्रू कैसे पासिंग द टुपल्स फ्रॉम मेथड पैरामीटर्स। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट। अंडरस्टूड? सो एनी मोर डाउट्स? क्योंकि ये एक टाइप बन गया। अब जब ये टाइप बन गया है, आप पैरामीटर्स में पास करो या क्लास के इंस्टेंशिएट करके पास करो या तो कंस्ट्रक्टर में पास करो,
प्रोवाइडेड यू हैव क्रिएटेड दैट प्रोग्रामिंग इन सच ए वे, है ना, ये सब ऑटोमेटिकली काम करेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपको ये जो है ना, मैं अगर यहाँ पे बुलियन लेता हूँ तो वो एरर देगा, बिकॉज नाउ इट इज टाइप सेफ, नाउ इट इज टाइप सेफ, ये आपको करने ही नहीं देगा। जब मैं रन करता हूँ तो आपको एरर देगा, क्योंकि ये कंपाइलेशन एरर देता है। एंड यू कैन सी कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम बोल टू इंट, ये आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है प्रोग्राम को फर्दर रन होने से। सो दैट्स व्हाई आपको ये टाइप सेफ्टी कंप्लाई करके दे रहा है आपको। सो हियर आई कैन टेक एनी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं, दैट इज वैलिड, बट यू कैनॉट चेंज द टाइप एज सच। So that is a restriction as well as the like compliance that is checking, that is checked by the CLR. समझ में आ गया? प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं दिखाया टुपल्स क्या है, जेनरिक्स क्या होते हैं, है ना। सो हमारे जो सेशन की मोस्टली सब में हमने चेक कर लिया है, ये कर चुके हैं। ये कलेक्शन का तो मैंने लास्ट में भी बता दिया, अभी इसमें भी एक कलेक्शन है, ये भी तो कलेक्शन ही है जो प्रीवियस में जो एग्जांपल दिया है ना मैंने, आई लिस्ट वाला, दैट इज आल्सो कलेक्शन। सो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। सो द कलेक्शंस ऑल दीज आर इंटरफेसेस। जब इंटरफेस इंप्लीमेंट किया तो आपको मैंडेटरली आई कलेक्शन है तो ऐड ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ मेथड आता है, उसको इंप्लीमेंट करना, ओनली दैट इज द डिफरेंस। एंड फॉर ईच का भी हमने चेक कर लिया है ना, फॉर ईच कैसे यूज करते हैं। ऑल द कलेक्शंस आर बाय डिफॉल्ट गेटिंग दिस फॉर ईच। तो आप विद इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डेटा टाइप, आप इंटीजर का लिस्ट ले सकते हैं, स्ट्रिंग का लिस्ट ले सकते हैं, या जेनरिक ले सकते हैं। फॉर ईच तो नॉर्मली कॉल कर सकते हैं, लाइक वी हैव सीन इन द प्रीवियस एग्जांपल। इसमें हमने कोड इटरेट करके भी चेक कर लिया है ना। ओके, ये है, इसमें हमने इटरेट करके भी चेक किया। सो फॉर ईच जहाँ पे आपका कलेक्शंस का नेमस्पेस आ रहा है ना, तो वहां पर आपको ये फॉर ईच वाला बाय डिफॉल्ट आ जाता है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। एंड फाइनली वी हैव सीन यूजिंग टुपल्स टू पास मल्टीपल वैल्यूज टू ए फंक्शन। So multiple values हमने पास किया, these are the multiple values and we have passed through a method. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। Yes. सर वो कंस्टेंट्स थोड़ा रिपीट कीजिए ना। Constraints actually ये जो अपना बैक वाला एग्जांपल में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये तो पूरा बनाना पड़ेगा। देखो ये आ गया अपना जेनरिक क्लास, ठीक है। अब इसकी जरूरत, इसमें मैं एक टाइप स्पेसिफाई किया, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय टाइप। ओके, ये कोई भी एक टाइप में स्पेसिफाई किया, इसके अंदर मेंबर्स है ना। सो void public void register for course, ऐसे सब मेथड्स आई कैन क्रिएट। देन ये ना, ये सब मेंबर्स बोलते हैं, डेटा मेंबर्स बोलते हैं, है ना। ये रिटर्न टाइप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। एंड गेट registered courses and here return 5। अभी तो मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, ये void है तो रिटर्न नल भी किया तो चलेगा, ठीक है। अब ये हार्ड कोड, ऐसा आपने कुछ प्रॉपर्टीज यूज किया, इंडेक्सर्स यूज किया, देन फंक्शंस यूज किया, मेंबर्स यूज किया, डेटा मेथड्स यूज किया, है ना, इवेंट्स यूज किया, डेलीगेट्स यूज किया, जो भी आपको करना है क्लास के अंदर आपने सब कुछ कर लिया। नाउ यू वांट टू क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ दिस, नाउ यू वांट टू क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ दिस and this collection should be of this type only। अब इसका एक एग्जांपल हमने लास्ट सेशन में चेक किया, उसके लिए तो इंडेक्सर्स तो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, इंडेक्सर्स के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन इंडेक्सर्स में क्या होता है कि एक ही टाइप के लिए मेंटेन कर सकता है, और वो क्लास खुद मेंटेन करता है। वो जो लिस्ट है ना, वो क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो टेम्पलेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इन दिस केस ये क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका प्रोग्राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, आपका जो टाइप है, ये जो नोड लिस्ट वाला टाइप है, ये ओनली स्टूडेंट टाइप का ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। देन इन दिस केस आई हैव टू टाइप वेयर t as a student, और आई थिंक वेयर t as, ऐसे दो बार तो नहीं आता, इसको कॉमा करके यूज करते हैं। अब इस केस में मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो फैकल्टी जैसे जितने भी आपका जो, जैसे डिराइव्ड में आपको यूज करना पड़ता है, व्हाट आर द सुपर
classes, you know, what are the inherited classes. So in that way you can provide a comma to each of its generic class, and then these functionalities are restricted to be implemented by these types only. तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इंटीजर तो हमने दिया ही नहीं है, स्टूडेंट दिया है, तो जब तक आप इसको स्टूडेंट नहीं करेंगे तो तब तक वो आगे बढ़ने नहीं देगा, लाइक दिस स्टूडेंट। इसमें एक्चुअली एरर इसीलिए दे रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट के अंदर आपको करना क्या है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आपको पहले बनाना पड़ेगा, एस डॉट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, है ना, एंड देन एस डॉट व्हाट आर द मेथड्स, रजिस्टर फॉर कोर्स, है ना, ये मेथड्स। तो फाइनली आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपको एस पास करना पड़ेगा, ये एस को लेगा। देखो यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, बट यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि ऑल दीज आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, बट दिस इज कंप्लाइंग टू द कंस्ट्रेंट गिवन बाय दिस जेनरिक क्लास। ये जेनरिक क्लास है, बट ये जेनरिक क्लास में आपने कंस्ट्रेंट भी यूज किया है, और वही कंस्ट्रेंट को वो एक्सेप्ट करेगा लाइक दिस। अब एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको भी आप पुश कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट वैलिड, ओनली द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज वैलिड इन दिस केस। अभी समझा? यस सर। ऐसा मल्टीपल डेटा टाइप्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कैसे इसको पास करेंगे, ठीक है। सो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। सो इंडेक्सर से थोड़ा हटके हैं, कलेक्शन मेंटेन कर सकते हैं, बट इन दिस केस दीज आर द जेनरिक टाइप्स, एंड जेनरिक टाइप्स होने की वजह से आपको क्या फीचर मिलता है, अनबॉक्सिंग का, बॉक्सिंग का जो परफॉर्मेंस पेनल्टी जो नॉर्मली मिलता है वो इस पे नहीं आएगा, एंड दैट इज द बेस्ट एडवांटेज। एंड अलॉन्ग विद दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर डेटा टाइप, है ना। सो रन टाइम पे आपको जो भी डेटा टाइप प्रोवाइड करना है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो डेटा टाइप हमने यहाँ पे कभी इंटीजर लिया, कभी ऐसा student, this I have to remove, this I have to convert into a t, I'm sorry, int, and this I have to convert into int, है ना। सो जब तक आप डायनेमिकली रन टाइम पे पास नहीं करेंगे, रन टाइम पे मतलब ये देखो, ये मेन प्रोग्राम के अंदर एक्चुअली जब अंदर चल रहा है तो डेटा टाइप हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ना कि ये जो क्लास का जो टेम्पलेट हमने बनाया तब, ठीक है। तो ये जो क्लास का टेम्पलेट में तो हमने तो जेनरिक रखा, बट यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया डेटा टाइप। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द रन टाइम डेफिनेशंस फॉर योर डेटा टाइप्स डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स by using the generic classes implementation. Still any doubts? Anyone? सर दूसरा एक डाउट था, रेफरेंस असेंबली के बारे में था सर। एक्चुअली मैं दूसरे प्रोजेक्ट रेफरेंस असेंबली दूसरी प्रोजेक्ट की ऐड नहीं कर पा रही थी सर। अच्छा, स्क्रीन को शेयर कीजिए प्लीज सर। आप बता देंगे क्या, एक्चुअली मेरा वाईफाई बंद है अभी। तो रेफरेंस असेंबली के लिए तो पहले तो आपको असेंबली बनाना पड़ेगा ना, डीएलएल बनाना पड़ेगा पहले। वो डीएलएल बनाने के बाद यहाँ पे जाके आपको ऐड रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड रेफरेंस, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ओके। सबसे पहले मैंडेटरी चीज क्या है बताता हूँ। जब आप लाइब्रेरी बनाते हो ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। जो चीज एक्सपोज करना है वो प्रॉपरली आप एक्सपोज करेंगे, ठीक है। ये सब एक्सपोज करने के बाद प्रॉपरली आपका ये जो क्लास बन जाएगा। ओनली डिफरेंस इज उसमें ये वाला मेथड नहीं रहेगा, ओनली दैट इज द डिफरेंस। मतलब ये जो मैं अलग से इसको क्लास बना के मैं डीएलएल बना सकता हूँ, अभी तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है। उसके लिए सेपरेट प्रोजेक्ट ही लेना पड़ता है। डीएलएल ऐड करना पड़ता है कि ईएक्सी करना पड़ता है सर? नहीं, ईएक्सी नहीं कर सकते हैं, ईएक्सी आप अटैच नहीं कर सकते, डीएलएल ही अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली जब इसको कंपाइल करेंगे ना, डीएलएल ही बनता है, वो ईएक्सी नहीं बनता है, क्योंकि ईएक्सी बनाने के लिए ये है ही नहीं, ये डीएलएल ही बनता है। अब डीएलएल बनने के बाद क्या करना है, डीएलएल बनने के बाद यहाँ पे जाना है, ऐड करना है, और
reference, then it will provide you the different references. All these are the DLLs from the .NET framework. ये सब referred है already. देखो आप पूरा syntax है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में DLL करके दिख रहे हैं. Okay, all these are referred properly. ये respective version के साथ आपको अब दिखा रहे हैं आपको. And then you have to browse your own DLL. जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, जहां पर भी वो होगा, है ना. तो यहाँ पर तो है ही नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने बनाई नहीं. आपको यहाँ से उसको अटैच करना पड़ेगा. अटैच करने के बाद, ऐसे अटैच करने के बाद प्रोग्राम के रेफरेंसेस में आपको यहाँ पे आ जाता है. रेफरेंसेस के अंदर ये देखो, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, ये .NET के रेफरेंसेस है. आपका प्रोजेक्ट का रेफरेंस आएगा विद दिस नेम, सैम्पल डेमो डॉट स्टूडेंट .dll करके आपको यहाँ पे आएगा. जब तक आपका यहाँ पर नहीं आता है ना, आप उसको रेफर नहीं कर सकते हैं लाइक दिस. आपके तो दूसरे प्रोजेक्ट में, ये इसमें नहीं करेंगे, दूसरे प्रोजेक्ट में उसको आपको एक्सेस करना पड़ता है. ऐसा एक बार आपने एक्सेस कर लिया, देन यू कैन डायरेक्टली कॉल द मेथड नेम्स लाइक दिस, रजिस्टर कोर्स, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं. Yes, क्योंकि sir. वो, हाँ एक्चुअली ना जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ना, वो कंसोल एप्लीकेशन है. हाँ. उसमें 2 कंसोल एप्लीकेशन है, एक .NET फ्रेमवर्क का है और दूसरा वाला कुछ भी नाम नहीं है उसका. तो मैंने जो .NET फ्रेम का नहीं है वो नहीं लिया, दूसरा लिया है. तो उसमें रेफरेंस ऑप्शन नहीं आता है सर. नहीं, जब आप कंपाइल करेंगे ना, ऑप्शन मतलब आप ये कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे हैं क्या? सी कंपाइल, CSC मैं कंपाइल. शेयर करूँ क्या, स्क्रीन शेयर करूँ क्या सर? हाँ कर लीजिए. हाँ सर, एक बार दिखाती हूँ. हाँ दिख रहा है. हाँ सर, ये मॉडिफायर्स का बनाया मैंने. हाँ. ये मेथड्स बनाए मैंने, हाँ, प्राइवेट right. पब्लिक इन सब बनाए. हाँ. और नहीं इसमें ये, हाँ ये आपका क्लास लाइब्रेरी बनाया था पहली बार. आपका प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी है क्या? क्या बोला सर आपने? क्लास लाइब्रेरी. देखो ये सबसे पहले बनाने का तरीका मैं बताता हूँ. इसको आप एक बार स्टॉप करो, वो बन जाता है 2 मिनट में बन जाता है. एक बार आप, हाँ ये मेरा शेयर स्क्रीन देखो. अभी इसको मैं रिमूव करता हूँ. What you have to do is file new project. ठीक है. अब इसमें टेम्पलेट्स आएगा. टेम्पलेट्स में इतने सारे तो सर्च नहीं कर सकते आप. ठीक है. सो यू हैव टू टेक क्लास लाइब्रेरी. दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लास लाइब्रेरी करके. ये इसमें नाम भी आ रहा है VB करके, C# करके. जो भी सेलेक्ट करेंगे उस रेस्पेक्टिव एक्सटेंशन के साथ वो क्रिएट हो जाता है. सो टेक केयर बिफोर क्रिएटिंग. सो आपको क्या करना पड़ेगा, C# क्लास लाइब्रेरी. इतने सारे आ रहे हैं, क्लास लाइब्रेरी, .NET फ्रेमवर्क. सपोज ये वाला लेते हैं. नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट करने के बाद क्लास लाइब्रेरी आएगा, क्रिएट. इसका वर्जन कौन सा है, इसके अंदर आप जितना भी स्टेटमेंट्स आपको डालना है ये डालिए. आप इसको कंपाइल कीजिए. कंपाइल करना मतलब बिल्ड ही करना है. एक्चुअली आपको बिल्ड करेंगे. अभी तो कुछ है ही नहीं इसमें. आपका DLL बन गया. जब आपका DLL बन गया, यहाँ पे ये क्लास लाइब्रेरी को रन नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया. देखो इसको मैं रन करने के लिए ट्राई करूंगा. ए प्रोजेक्ट विद एन आउटपुट टाइप क्लास लाइब्रेरी कैन नॉट बी क्रिएटेड डायरेक्टली, है ना. तो इसको रन क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो वाला मेन मेथड नहीं है कि नहीं. तो दैट्स व्हाई अभी आपका ये DLL बन चुका है. DLL बनने के बाद ओपन फोल्डर बिन डिबग. DLL दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहे हैं ना आपको, क्लास लाइब्रेरी 1 DLL. ये क्लास लाइब्रेरी 1 क्या है, ये आपका क्लास का नाम है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जैसे मैंने बताया, अभी वो वाला प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा. अभी इसमें नहीं कर सकते हो. अभी दूसरा एक और प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, है ना. मैं एक काम करता हूँ, पहला वाला प्रोजेक्ट में जाता हूँ. इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ कहीं पर भी. इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ. अब इसमें मेथड्स नहीं, मैंने बनाए नहीं, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं सिंपली दिखा देता हूँ. नाउ वी हैव टू गो हियर. I will just close this previous folder, close solution, then open my previous solution. In this I have to attach this. कैसे करेंगे, डेमो में जाएंगे,
ऐड करेंगे, रेफरेंस करेंगे, ब्राउज करेंगे, देन आई विल गो टू माय डेस्कटॉप हियर, देन ये जो डीएलएल दिख रहा है उसको अटैच करेंगे। अब ये क्लास के अंदर आ गया, आपके ये जो प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। नाउ यू कैन टेक दैट, नेम स्पेस क्या बनाया पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। क्लास लाइब्रेरी, हाँ क्लास लाइब्रेरी बनाया। अब उसमें कोई मेथड्स नहीं है, मेथड्स होंगे तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन डायरेक्टली क्रिएट क्लास लाइब्रेरी 1, सॉरी क्लास लाइब्रेरी 1, जो भी आपका क्लास का नाम है, सी इज इक्वल टू न्यू क्लास लाइब्रेरी 1। आप सी डॉट करेंगे तो अभी उसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो आपको कुछ दिख नहीं रहा। ओके, इसका नेम स्पेस एक्चुअली आपको लेना पड़ेगा प्रॉपरली, फिर आपका हो जाएगा। स्टेप्स इतना ही है, बाकी कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? मेन थिंग इज हाउ यू आर अटैचिंग, आपको ये अटैच करना पड़ेगा, आपके रेफरेंसेस में अटैच करना पड़ेगा, तभी इसके जो भी पब्लिक मेथड्स है वो सब है आपको एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो आपका डाउट? और अभी भी क्लियर नहीं हुआ? हेलो, क्लियर हुआ आपका डाउट? यू आर नॉट ऑडिबल। सर स्क्रीन शेयर करो हाँ हाँ कर लीजिए। आप। सर एक बार जरा फिर से दिखाइए डीएल। इसी में से कर लेता हूँ ना, मुझे कंट्रोल दीजिए, मैं इसी में से कर लेता हूँ। यस ये आपने क्लास लाइब्रेरी बनाया ना? नहीं सर, क्लास लाइब्रेरी नहीं, ये प्रोजेक्ट है कंसोल ऐप का, तो उसमें ये हम्म, क्लास बनाया है एक। आपका डीएलएल नहीं बनेगा ना, आपका डीएलएल बनाना चाहिए ना। देखो आपके इसमें मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कौन सा रूटीन है, इसमें जाना है, तो फाइल मुझे क्लिक नहीं करने देना। आप फाइल न्यू करो ना, मुझे वहां से एक्सेस, क्या फाइल बोल न्यू रहे करो, फाइल न्यू करो। फाइल? हाँ फाइल न्यू, ओके, देन प्रोजेक्ट, देन सर्च हियर, मुझे कंट्रोल दीजिए नहीं तो मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, टाइप कीजिए क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी, ओके। इसमें आइए, स्क्रॉल कीजिए नीचे, स्क्रॉल करने के बाद आपको ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला क्लास लाइब्रेरी विद सी शार्प, ये भी नहीं दिखना चाहिए, सी शार्प दिखना चाहिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यू कैन प्रोवाइड एनी नेम टू दिस, एक मीनिंगफुल नाम दीजिए सो दैट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अभी वो मेथड्स आप कॉपी कर सकते हैं क्या? अच्छा पहले कॉपी करके रखना था, या ये एक दो मेथड्स बना दीजिए। ये क्लास का नाम भी चेंज कर लीजिए, क्लास का नाम भी कुछ और मीनिंगफुल लिखिए, इसमें स्टूडेंट डेटा ऐसा समथिंग, स्टूडेंट डेटा ऐसा कुछ तो भी आप लिख लीजिए, ठीक है।
सर ये क्लास के अंदर ले लो। हाँ हाँ, यस यस, सॉरी सॉरी क्लास के बाहर हाँ वो इसमें ऐसा नहीं है। हाँ सैंपल के लिए ले लो, जस्ट एग्जांपल के लिए, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, ठीक है। नाउ इसको बिल्ड करो, आप रन नहीं कर सकते इसको, ठीक है, बिकॉज दिस इज ए लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। बिल्ड कर लिया, बिल्ड हो गया, वो सक्सेसफुली बिल्ड होता ही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। नाउ राइट क्लिक ऑन योर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे एक्सेस मोड वहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एक्सेस। हाँ, ओपन फोल्डर, नो 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 नो, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, क्योंकि वो पाथ अपने को पता नहीं है ना इसने कहाँ सेव किया, ठीक है। अब इसके अंदर बिन में जाइए, डिबग में जाइए, आपको डीएलएल दिखेगा, ये डीएलएल आपका है, ठीक है। इसको कॉपी करके रख लीजिए, कहीं पर भी रख लीजिए, आपका नोन प्लेस में रखिए। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब आपका लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बन चुका है। नाउ गो बैक टू योर प्रीवियस प्रोजेक्ट। प्रीवियस प्रोजेक्ट कौन सा आपका, वो ओपन कीजिए। तो दूसरा तरीका ऐसा, कौन सा भी दूसरा भी कर लो चलेगा। कोई भी चलेगा, ठीक है। हाँ उसको ओपन कीजिए। हाँ उसका एक बार क्लास का नाम देखना चाहिए था अपने को, क्या था वो, स्टूडेंट डेटा और एक्सेस मॉडिफायर, हाँ एक्सेस मॉडिफायर ना। हाँ अब इसको ओपन कीजिए डबल क्लिक करके प्रोग्राम को, ठीक है। नाउ यू हैव टू, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं आता, वो गलत है, ये प्रोजेक्ट नहीं। एक काम कीजिए, फाइल क्लोज, दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कीजिए, ठीक है। दूसरा एक्चुअली मैंने बहुत सारे बनाए वो। हाँ ठीक, नया बना लीजिए ना, नया एक कौन सा एप्लीकेशन बनाइए, आपने तो टेस्ट ही तो करना है। अच्छा इसमें इसमें मेन वाला कौन सा, एक बार रन करके देखिए, एक बार मेन वाला कौन सा पता चलेगा। नहीं एक बार रन कीजिए उसको। सब में है सर। सब में तो नहीं चलेगा ना, फिर ये रन ही नहीं होगा ना ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नया प्रोजेक्ट ही बनाइए ना। इसको एक बार रन कीजिए, पता तो चलेगा ना, तो डायरेक्टली रन कीजिए, मैं इसको रन ऐसे करती हूँ सर। ऊपर से। अच्छा स्पेसिफिक रन कर रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ समझ गए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते इसमें कर सकते हैं ना सर फिर? कर सकते। कौन सा? नहीं नहीं वैसे नहीं आएगा वो, वैसे नहीं आएगा। यू हैव टू फर्स्ट रेफर, यहाँ पे यूजिंग ऊपर में, नो नो नो, हाँ पहले आपको ऐड तो कर लिया ना, नहीं ऐड नहीं किया ना इसमें आपने, नहीं इसमें नहीं किया नहीं सर। किया सर हाँ ऐड अभी। इसमें नहीं किया ना ऐड। प्रोजेक्ट रेफरेंस सर। न्यू आइटम सॉरी गो बैक प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड रेफरेंस करके आना चाहिए, ऐड रेफरेंस, यस कीजिए, इसमें ब्राउज कीजिए। ओके आ चुका है, ओके करेंगे तो ये आपके राइट साइड में आपका रेफरेंसेस में आ जाएगा। ये देखिए डिपेंडेंसीज में आ गया, तो डिपेंडेंसीज में देखिए आना चाहिए, आए क्यों, एक बार रिफ्रेश कीजिए सॉल्यूशन को, ये कहीं और सेव किया हो शायद, रेफरेंस रिफ्रेश, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, अभी यूजिंग में जाके, एक्चुअली आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाया ना, एक सोल्यूशन के अंदर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाया, वो कहीं ना कहीं तो वो ऐड होगा। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे एक्सेस मोड पे कीजिए, एक्सेस आ गया, ठीक है। हाँ रेफर करो उसको, सेमीकोलन। अब क्लास में आइए, क्लास में आने के बाद आपका क्लास का नाम क्या है, एक्सेस मॉडी, नहीं स्टूडेंट डेटा नहीं आप नहीं आपको ऑब्जेक्ट बनाना ऑब्जेक्ट है, क्रिएट करो ना अभी। मेन क्लास कहीं पर भी मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ,
आ गया क्लास? यस सर। बस कीजिए ना, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डेटा। ठीक है, st डॉट करेंगे तो आपको सारे मेथड्स दिखेंगे। दिख रहा है? 1 2 3 मेथड को Yes, कॉल sir. कीजिए, ये मेथड से कॉल करेंगे, दैट्स ऑल। वो लाइब्रेरी का फंक्शनलिटी यहाँ पे कॉल हो जाएगा। रन करेंगे तो उसमें जो आपने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन में, वो यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखेगा। एक्चुअली सर हमने जो बनाया था ना वो हम्म। क्लास लाइब्रेरी हम्म, डीडीएल की, हम्म। तो वैसे हम अलग से प्रोजेक्ट में जाके सिर्फ जो डीडीएल नहीं बनाते, हम सिर्फ वो क्लास है डीडीएल नहीं उसको है, हम वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं, वो डीएलएल है वो। ठीक है। यस सर। ओके, हाँ टेस्ट डीएलएल बोल रहे हैं सर। हाँ, डीएलएल नहीं बोल रहे आप, डीडीएल डीडीएल बोल रहे हैं बार बार। हाँ अच्छा ठीक है, सॉरी। फिर हाँ हाँ, तर तो अलग से हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें नहीं रहेगी ना, तो उस क्लास में से जो मेथड थे इस क्लास में चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? अभी वही तो आ रहा है ना, अभी ऐसे ही तो आ रहा है। अभी उस क्लास का जो मेथड्स है स्टूडेंट वन, इसके अंदर कहाँ है आपके क्लास के अंदर? ये स्टूडेंट वन मेथड उसमें था ना, तभी तो आप एक्सेस कर पा रहे हैं। बट हमने डीएलएल नहीं बनाया था ना सर उसमें। डीएलएल ही बनाया आपने, यहाँ पे जो रेफर किया आपने डीएलएल ही बनाया, आपने रेफर किया है। आप चेक कर DLL लीजिए की ना फाइल दिखाई ना डेस्कटॉप, सर आपने, वही कॉपी किया बा। डेस्कटॉप पे जाइए आप एक बार, उसका एक्सटेंशन चेक कर लीजिए। हमने अलग से डीएलएल बनाया था सर, बट मेरा अलग जो प्रोजेक्ट था ना पहले, तो उसमें डीएलएल हमने बनाया नहीं था ना। आप बना भी नहीं सकते ना उसमें, आपने लाइब्रेरी प्रोजेक्ट नहीं लिया वो। ये देखो इसका एक्सटेंशन, आपका डाउट नहीं समझे मैं। आपका डाउट क्या है? देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, चेक कर लीजिए। इसका डीएलएल है सर। हाँ फिर एक्चुअली मेरा जो प्रोजेक्ट था ना, हम्म, एक मिनट, अभी नहीं इसका डीएलएल बनाने के बोल रहे हैं आप? नहीं सर, इसका एक्चुअली मैंने ऐसा एक प्रोजेक्ट लिया था कंसोल ऐप 2 बोल के, तो उसमें मैंने एक क्लास बनाया है, 1 क्लास। ठीक है। तो इसमें जो मेथड्स है, जो भी मेथड्स होंगे, इस मेथड मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए थे, तो हाँ उसमें तो तो हमें बनाने का तरीका वही है, अभी जो मैंने बताया ना वैसे ही तरीका है। ओनली ओनली थिंग इज आपको वो क्लास के अंदर ये स्टैटिक मेन नहीं रख सकते आप, फिर वो बनता नहीं। फिर ये हटाना पड़ेगा आपको, ये मेन वाला हटाना पड़ेगा, तब वो बन जाएगा। इसमें ये हटा देंगे ना, वो बन जाएगा। अच्छा, मेन हटाने से सिर्फ? हाँ वो अच्छा तभी तो, नहीं तो वो एक ही बनाएगा ना वो। अच्छा, ठीक है सर। अभी आपका डाउट क्लियर है? हाँ सर। अभी आपने प्रैक्टिकली भी करके भी देख लिया, आपने कैसे रेफर करते हैं, क्या कैसे उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग में लाना पड़ेगा, यूजिंग में रेफर करने के बाद ही आपको इंस्टेंस बनाने के लिए मिलेगा वो। तो कोई भी लाइब्रेरी वैसी ही, ठीक है। ओके, सो एनी मोर डाउट्स टू एनीवन? ऐसा कोई भी डाउट है तो पूछिए आप, सो दैट एक को डाउट आया तो सभी को आपको पता चलेगा कैसे करना है। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, वो जावा में जैसे जार फाइल ऐड करते हैं किसी लाइब्रेरी के लिए, हाँ सेम यहाँ पर सेम डीएलएल यूज करते हाँ हैं? हाँ, वैसे ही वो भी तो डीएलएल ही है। ओके, सेम सेम सेम, थैंक वैसा यू। रेफर करना पड़ता है। आप वैसा ऐड रेफरेंस के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट भी करोगे ना वो फोल्डर में, जैसे अपना प्रोजेक्ट का ये वाला है, ठीक है। ये कहीं तो भी मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपके दूसरे प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे डाल देंगे ना, उसका रेफरेंस अटैच करेंगे तो वो वैसे भी चल जाता है। तो बस रेफर करना जरूरी है, बिना रेफर किए होंगे तो नहीं चलेगा। ओके सर, थैंक यू। सो यू कैन रेफर एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, 10 15 20 जितने भी आपके डिफरेंट
क्लासेस आपने बनाए होंगे, प्रोग्राम्स के लिए फंक्शनलिटीज बनाए होंगे, वो सब आप रेफर कर सकते हैं। और कुछ किसी को पूछना है? तो आप ट्राई करके देखो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ, बट आप ट्राई करोगे ना, शायद मैं ऐसा एक चीज बोल रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ जो मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए, वो आप करते हैं तो आपको इश्यूज आएंगे, तो आपको पता चलेगा, देन यू विल गेट द डाउट एंड मुझे पूछेंगे तो मैं सॉल्व करूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपको भी क्लैरिटी आता है और जो देखने वाले हैं उनको भी क्लैरिटी आएगा, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे थे, आप सीधा EXE वाला जो मेन वाला, इसमें ही आप DLL बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो, वैसा नहीं बनता वो, सेपरेट प्रोजेक्ट लेना पड़ता है, सेपरेट प्रोजेक्ट लेके उसको सेपरेटली बिल्ड करना पड़ता है, बिल्ड करने के बाद उसको रेफर करना पड़ता है, रेफर करने के बाद ही आपको वो लाइब्रेरी का जैसे काम आएगा, ठीक है। यस सर। सर एक एरर आ रहा था अभी, जो ऐड नोड और डिलीट नोड के मेथड्स थी, हाँ तो शेयर कर। शेयर कीजिए। यस सर। यहाँ पे एरर दे रहा है, पब्लिक वॉइड डिलीट नोड को। एक मिनट, ये Really? इसके ऊपर ये एल नहीं लिखा ना इसमें अरे पब्लिक का एल तो लिखो, सॉरी सर। ठीक है। अच्छा ओके। वो खुद ही वहां पे नीचे स्टेटमेंट दिखाता रहता है आपको क्या करना चाहिए, है ना। हाँ। बस आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है, हाँ। ठीक है। हाँ। तो और किसी को डाउट्स है क्या? If there are no doubts, then we can conclude today's session. Okay, so I guess no doubts to anyone. So let us conclude this. So Thank you, sir. we will meet tomorrow again. Okay, thank you everyone. So Thank you, sir. yeah, we can discuss. Thank you, sir. Yes, thank you.